Car is moving the river, don't trust the road, the kite is flying the buildings, the cat is resting the table, the plane is flying the clouds, a portrait is hanging the attic, someone is standing her mother, there is a shape the lake, the house is built the guava trees, he is lying his two children. So, because of some technical issues, I couldn't complete my video on the preposition of place. कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जो पार्ट मैंने पढ़ाया है वो उससे पढ़ लेना एंड रिमेनिंग पार्ट लर्न फ्रॉम हियर। ओके, आगे बढ़ने से पहले as I always say to subscribe to my channel and share it, don't forget to turn on your notification bell icon, भाई तभी तो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। ऐसा तो नहीं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा दूं और आपसे मिस हो जाए, तो कर लीजिए ना, क्या, टर्न ऑन योर बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन और लाइक करना जरूर मत भूलना, बिल्कुल लाइक करना भैया, लाइक करोगे तभी तो मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में आपको जो लिखना है, जो बताना है कि सर आप ये गलती कर रहे हो या सर आपका वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आई विल थिंक ऑन दैट, आई ट्राई टू इंप्रूव थिंग्स। ओके, चलिए, तो सेंटेंसेस तो ठीक है बट इनकम्प्लीट है। मुझे लगता है आपको, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। भैया दीज एक्शंस ऑब्वियसली, इन एक्शंस के नाम लेते ही एज सुन एज वी थिंक ऑफ दीज एक्शंस तो प्लेस तो हमारे दिमाग में आएंगे ही, बट क्या प्लेस उस एक्शन के साथ कनेक्ट हो रहा है? इज इट कनेक्टिंग टू आवर एक्शन? इज इट एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद आवर एक्शन? तो यही तो प्रॉब्लम है। When your action is not able or object is not able to connect relationship, to establish relationship with your work, तब क्या करना है? prepositions लगाना है। तो यही तो काम है preposition का। Prepositions are not required for those verbs which have their own object, पर जिनके object direct नहीं है, क्या उनको object लेने का कोई हक नहीं है? Don't they have the right to have the object? Yes, they have. But what is the method? Allow preposition them to connect. Okay? Car is moving the river. Last में जो मेरा last video है on preposition of place, I told you how to and how at in and other preposition I taught you in that video. किस तरीके से prepositions were actually joining the verb to its object and giving the sensible sentences. Okay, so obviously अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग सिंपल सेंटेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाया। कैसे बनाया? Who, what, whom, asking these three questions. Once we got the simple sentence, the one-liner, so let's expand it. Let's stretch the sentence to another limit. Let's extend it to a new level. यही तो है इंग्लिश सीखने का तरीका। बेस्ट सीखो जरा, देखो जरा। So car is moving the river, नहीं हो रहा कनेक्ट, या rush the road, नहीं हो रहा कनेक्ट, तो कनेक्ट करते हैं। क्या करें? लगाएं preposition, लगाते हैं। car is moving along the river, don't rush across the road, the kite is flying over the building, the cat is resting under the table, the plane is flying above the clouds, the portrait is hanging below the attic, someone is standing by or beside either of these prepositions. Beside her mother, there is a ship amid the lake, the house is built among the guava trees and he is lying between his two children. अब preposition तो मैंने बता दी है, पर समझ में तो कुछ आया नहीं भाई। नेक्स्ट टाइम when we have to use the preposition, the same preposition,
When to use which one? How to use which one? We haven't got the answer of this question yet. So let's get the answer. Let's search for the answer. क्या करना है? Let's understand the relationship between the action and the position of the object. किस सेंस में? What idea the object is giving to the verb? क्या आइडिया दे रहा है भैया? समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है. देखो जरा. Car is moving along the river. So river किनारे किनारे चल रही है, रिवर के किनारे किनारे, साइड बाय साइड, तभी तो along लगाया है. Whenever you have to give the sense of side by side, किनारे किनारे, और on the side, और on the side, क्या लगाओगी? Along the river. The man is walking along the fence. The ball is running along the boundary. तो जब भी किनारे किनारे का सेंस देना है, there is a group of ants are rushing along the fence, along the table. The pen is moving along the board. So when something is moving on the side of any particular object, क्या लगाना है? Along. Let's have the second one. Don't rush across the road. Across कब लगाना है? भाई रोड तो हमारा कोई भी प्लेस हो सकता है ना, बट यहाँ पर किस तरह के सेंस में यूज कर रहा हो? रश अक्रॉस द रोड. रश द रोड. भाई रश पर अपन अगर रोड पर चल रहे हैं, इट्स ओके. रोड के किनारे चल रहे हैं, अलोंग द रोड चल रहे हैं, तब भी ओके है. बट डोंट लगा है. कोई रोड पर क्या काम नहीं करना चाहिए? रोड के उस पार जब आते हैं तब तेजी से नहीं भागना चाहिए. डोंट रश अक्रॉस द रोड, यानी कि इट इज गिविंग द सेंस ऑफ अदर साइड ऑफ द रोड. अदर साइड, इट मीन्स जब आपका रोड है, रोड के तिरछे आड़े में, अदर साइड नहीं दौड़ना चाहिए. यू मस्ट नॉट डू दिस एक्ट. इट कैन बी डेंजरस, फैटल एंड डेट्रीमेंटल. सो डोंट रश अक्रॉस द रोड, इसीलिए अक्रॉस लगाया है, बिकॉज इस काम के लिए मना किया जा रहा है. बिकॉज इट शुड नॉट बी डन, इट मस्ट नॉट बी डन, इसीलिए अक्रॉस लगाया है. अक्रॉस कब लगाना है? व्हेन यू हैव टू गिव द सेंस ऑफ अदर साइड. ही वेंट अक्रॉस द रोड to that shop to purchase something. It's not possible to cross the river without a boat, especially if it is flooded. तो दूसरी साइड, अदर साइड, तीसरा वाला, the kite is flying over the building. और कहाँ उड़ती है? अगर कोई चीज उड़ेगी तो बिल्डिंग के ऊपर ही उड़ेगी ना, टच तो नहीं कर रही ना. So when आपका जो सब्जेक्ट है आपके ऑब्जेक्ट के आसपास तो है, but it is not touching. ये टच नहीं कर रहा. कहां पर है? अप है एंड अराउंड है, थोड़ा सा ऊपर है और आसपास है, टच नहीं कर रहा. आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए. इन दैट केस यूज ओवर. A fan is hanging over my head. There is a group of mosquito flying over my head. Okay? तो जब भी आपको सेंस देना है अप एंड अराउंड का, go with over. Now the cat is resting under the tree. When the subject is exact downside of the object, object के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऐसे, जैसे आप देखिएगा मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बिल्कुल नीचे है, so my left hand is under the right hand. आपका ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करे हुए है. In that case use under. So सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सॉरी, ऑब्जेक्ट कवर सब्जेक्ट, कवर्स सब्जेक्ट, पूरा कवर करनी है. यूज अंडर. हालांकि अपन ओवर में भी सेम आइडिया लगा सकते हैं. यू कैन यूज द सेम आइडिया. व्हेन योर सब्जेक्ट कवर्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कवर करे तो ओवर, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कवर करे तो अंडर. आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. तो फ्लाई में तो ओवर लग गया सर, अबव भी लगता है क्या? यस लगता है. सो ओवर किस क्या सेंस देता है? ओवर गिव्स द सेंस ऑफ अप एंड अराउंड. बट अगर कोई चीज अप तो है बट अराउंड नहीं, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अप एंड अवे, अप एंड अवे, ऊपर भी है और ऊपर के साथ साथ आसपास नहीं है. इट इज गोइंग अवे, क्लाउड से आगे चला जा रहा है. देन वी गो विद अबव. नाउ व्हाट इज बिलो? बिलो इज जस्ट लाइक अंडर बट लिटिल डिफरेंट. अंडर में क्या होता है? योर
सब्जेक्ट एक्चुअली इज एग्जैक्ट डाउन साइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे, लेकिन बिलो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट नीचे हो ना हो तब भी चलेगा। जैसे जो एटिक होती है, घरों पर एटिक होती है, घरों में लगी रहती है, टाड़ बोलते हैं हिंदी में। तो अगर कोई पोर्ट्रेट उसके नीचे लगी है, नीचे की तरफ वॉल में, तो अपन क्या लगाएंगे, बिलो द एटिक। ओके, या फिर जो पीक होता है माउंटेन का, किसी पर्टिकुलर हिल का, उसके नीचे मैं खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिलो दी पीक ऑफ द माउंटेन। मैं एग्जैक्ट नीचे तो नहीं हूं ना, बट नीचे तो हूं फिर। तो जब भी whenever we have to give the sense of नीचे means downside, downside we use below. then Suman is standing by beside her mother, बगल में, बगल में, साइड में, बगल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑन द साइड ऑफ। अब बोलोगे सर along भी तो यही है, along is used for the movement। जो डिफरेंस टू और इनमें है, जो डिफरेंस टू और एट में है, we have the same difference between by, beside or along. Along is used when we are moving on a side, whereas by or beside are used when we are staying by or beside or on a side. Clear? चलिए, there is a shape amid the lake, in the middle of। amid gives the sense of in the middle of, बिल्कुल बीचों बीच, middle of। The house is built among the guava trees। एक घर, बहुत सारे पेड़, सभी पेड़ किस चीज के, गुआवा के, जामफल बोलते हैं इसको। तो गुआवा के पेड़ों के बीचों बीच बहुत सारे पेड़, देयर आर सो मेनी ट्रीज, among those trees there is one house। बहुत सारी चीजों में जब एक चीज हो, आपका सब्जेक्ट इज वन और ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो, उनके बीचों बीच कुछ है, दैट वे यूज among, ठीक है। तो वन वन इन सो मैनी के सेंस में, एक बहुत सारों के सेंस में, बहुत सारे हैं उनके बीचों बीच एक है। हाउस अमंग द ट्रीज, द टीचर अमंग द स्टूडेंट्स, वन चेयर अमंग द स्टूडेंट्स। जैसे हम वो खेलते हैं ना, चेयर वाला गेम खेलते हैं, पासिंग चेयर, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। तो उसमें देयर आर सो मेनी प्लेयर्स टू प्ले and there is only one chair, so among those students there is only one chair, those players there is only one chair। तो among कब लगेगा, जब एक बहुत सारों के बीच में है। लेकिन अगर एक दो लोगों के बीच में है, कितने लोगों के बीच में, only two, तो between क्या हो जाएगा, one in two, one in two, एक दो के बीच में है, दो लोगों के बीच में, कोई चीज दो चीजों के बीचों बीच में है, उनके बीच फंस गया, क्या लगाएंगे, बिटवीन। तो बेसिकली दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन ऑफ प्लेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलोंग व्हेन वी हैव टू गिव द सेंस ऑफ साइड बाय साइड इन मूवमेंट। अक्रॉस व्हेन वी गिव द सेंस ऑफ अदर साइड। ओवर व्हेन वी गिव द सेंस ऑफ अप एंड अराउंड। अंडर व्हेन वी गिव द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग सब्जेक्ट। अबव when we have to give the sense of up and away, ऊपर भी है और दूर जा रहा है। below when we have to give the sense of downside, by or beside when we have to give the sense of on side by side or on the side but not moving। amid in the middle of, in the middle of। among इसको यूज कब करना है, जब एक चीज बहुत सारे चीजों के बीच में है, one in many, between one and two। इसके अलावा I'm sure you must get confused in the use of over and on। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, एक बार सुन लो, कभी नहीं भूलोगे। ओवर में आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता, सर्फेसेज आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट, सब सर्फेसेज आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट। वेयरएज जब दोनों सर्फेसेज आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाए, ऑन लग जाएगा। My right hand is on the left hand, the picture is on the wall, the portrait is on the wall। टच कर रहा है ना, लेकिन जब टच नहीं कर रहा है और ऊपर है, then we go with over। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता होगा, you must have got confused so many times। The bridge is made space the river across on over, क्या लगाओगे,
ओवर नहीं भाई, ओवर तो लटकने का सेंस देता है ना, तो क्या ब्रिज लटका है कि नदी पर? नहीं। ऑन नहीं भाई, ऑन तो सरफेस पर रखा हुआ है, तो रखे हुए का सेंस कहां देता है? ऑन गिव्स द सेंस ऑफ रखा हुआ, टच कर रहा है उसको, तो रखा हुआ तो नहीं है ना नदी पर, तो बचा क्या? अक्रॉस, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू साइड्स, इट इज कनेक्टिंग टू साइड, आपके दो साइड्स हैं, दो किनारे हैं, एंड ब्रिज इज कनेक्टिंग दीज टू साइड्स। ठीक है, तो जब भी दो चीज कनेक्ट करता है, whenever we have to give the sense of connecting two sides, हम अक्रॉस लगाते हैं ओवर और ऑन में। आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आया होगा इन प्रेपरेशन को पढ़ते हुए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप सब्सक्राइब तो करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन तो रखिए, कमेंट पर कुछ भेजिए तो सही, बताइए तो सही क्या प्रॉब्लम्स है। जब आपकी प्रॉब्लम्स को मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, I will try my level best to correct them, to be much better than what I am today. Thank you very much.